All right. In this session, we are going to cover a few concepts that were remaining in the topic of mirage. Mirage, okay. That is something we will cover. We'll also cover images. So basically, this session will constitute of only two topics. One is mirage, and the other is about images. We have already discussed the nature of light, the wave theory. Basically, I'll sum it up what we have discussed so far. First, uh, first of all, we have discussed the nature of light, okay, in which we talked about the wave as well as the particle nature of light. There are situations where we can understand the behavior of light only by considering light as a wave, which is basically an electromagnetic wave, okay, an electromagnetic wave. And there are certain behaviors of light which we can only understand if we consider light as a stream of particles. And what particles do we call them? Photon, okay, the photons. And for example, diffraction and interference of light producing patterns, that is something that we can easily understand by considering light as a wave. Especially diffraction is something that you cannot understand if you consider light as purely a stream of particles, or using the corpuscular theory that was initially proposed by the Newton. Even after the corpuscles were replaced by the quantum particles called photons, even after that also, incidents or behavior such as diffraction cannot be understood by considering the light as a stream of particles called the, oh, sorry, I have not shared the screen. And आप लोगों ने बोला भी नहीं यार, बोलना चाहिए. ठीक है, अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्वाति, आशी, can you see the screen, the whiteboard basically? Yes, yes, sir. Good. Okay. So, what we have discussed now, the nature of light, in which light is an electromagnetic wave. Sorry. And at the same time, it is a stream of photons. Okay. The number two that we discussed is basically waves. What are waves and what are oscillations? Oscillations. We discussed what are waves and what are oscillations. In short, it's a periodic, whenever there is inside any system, if there is only at one point there is a periodic fluctuation in energy, we call that oscillation. At more than one connected points, when you consider all the oscillations at the same time, you call it a wave. Okay. And when the wave is actually a material wave, that is a mechanical wave, you call that vibration. Okay. That all we discussed. We discussed actually waves and oscillations before we talked about the electromagnetic wave. And then we talked about effect of material media on light. For example, there is a light ray. Let's say this is an interface. There is a medium of air and there is a medium of water here. Okay. So let us call that the air has a refractive index mu1 and water has a refractive index mu2, and there is a normal to let us draw normal to this particular interface surface S at a particular point, and let the incident ray of light come and hit this point, okay, with certain angle. This angle, let us call this I. Okay, this is called the I ray, incident ray. And when it hits this particular point, it is supposed to travel in its original path. Okay, but the thing is, now the water, the medium has changed. The medium is no longer air, it has become water, and that has a different refractive index mu2. So what happens is, it now actually depends on whether mu2 is more than mu1 or mu2 is less than mu1. Depending, if mu2 is greater than mu1, then the ray of light will actually deviate from its original path, and it will travel closer to the normal. Okay, so this angle r, the angle of refraction, will be less than angle of incidence. But if mu2 is less than mu1, that means the new medium is a lighter medium than the previous one. The refracted ray will deviate away from the normal and describe a larger angle r
an angle which is larger than the incident angle of incidence. Okay, and this is basically covered in Snell's law, that is the effect of the medium on light. Now, before I discuss Snell's law here, which we have already covered, what is mu? Mu1, or whether mu1 or whatever, mu2, whatever you call it, what is mu? Mu is given as speed of light in vacuum, which is c, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is the speed of 3 lakh kilometer per second, divided by the apparent speed of light in a medium. For example, whatever medium it is, provided that medium is transparent, it is not totally opaque, that means it does not totally absorb light, it does let light pass through it, but after causing certain interruptions. Okay, it does not slow light down, it only causes interruptions, and because of those interruptions, light takes more time to cross the medium. That is why the apparent speed is called, it is called apparent speed, not the speed. V is the speed of light in any material medium, and that is not exactly the speed, it's the apparent speed. Okay, so what happens is we define mu of that material medium as speed of light in vacuum, which is c, divided by v, which is the apparent speed of light in that particular medium. Now we know that c is always greater than v. Okay, c is always greater than v. Okay, whenever there is a material medium, it will only make the light appear slower. So V is always less than C. If V is always less than C, then in this fraction that we are considering, C upon V, since denominator is always less than the numerator, this is always going to be greater than 1. So mu is always greater than 1. So when we take mu equals to 1, we mean that the medium is either vacuum or it is air, because usually air under normal conditions is considered to have the same apparent speed of light as the speed of light in vacuum. Okay, they are considered to be approximately the same. So when we say mu is equal to 1, that means what we understand is that the medium is either vacuum or the medium is air. Okay, so in this case what happens is, now that air has a okay, air has this index mu1 and water has this index mu2. Okay, now the angle of incidence is I. We know that angle of incidence is I. How do you find the angle of refraction? For that we use Snell's law. Basically Snell's law, what Snell's law says, basically Snell's law has two statements. In rough you can just say that Snell's law constitutes of two statements. Snell's law, इसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो एक्चुअली वो स्नेल्स लॉ नहीं, वो एक प्री कंडीशन है। तो तुमको अपने जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ाया जाता है, बताऊंगा वो जैसे लिखा गया है, तुमको खैर बोर्ड एग्जाम में वैसे ही लिखना पड़ेगा सच, बट कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, मैं तुमको थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली स्नेल्स लॉ आपको एक कंडीशन बता देता है कि ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ आ रहा है, एक लाइन है नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी एक लाइन है। तो जहां पे दो लाइनें हमें मिल गए, ठीक है, इसको आप ऐसे देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइन मिल गई, इसका मतलब एक प्लेन मिल गया तुमको। ठीक है, दो लाइन अगर आपको मिल गए तो एक प्लेन मिल ही जाता है, क्योंकि जैसे दो पॉइंट से हम एक लाइन डिफाइन कर लेते हैं, वैसे दो लाइन से हम एक प्लेन डिफाइन कर लेते हैं। मगर ये होना चाहिए कि वो दोनों जो लाइन है वो स्क्यूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब दो लाइन तो बन गया, एक तो इंसिडेंट रे आ गया आई रे, और एक हो गया नॉर्मल एन। ठीक है, ये दोनों लाइन तो एक प्लेन में रहेंगे ही रहेंगे, मगर स्नेल ने क्या बताया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, या ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये जो इधर चाहे रिफ्रैक्टेड रे इधर जाए चाहे अंदर की तरफ आए, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, इन दोनों आर रे किसी भी केस में अंदर की तरफ मुड़े या बाहर की तरफ मुड़े, तो इन आई रे, एन और ये आर रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ये स्नेल ने पहले बताया कि ये तीनों लाइन जो है आई रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो है एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वो सीधी सी बात ही इनका ऑब्जर्वेशन था कि हाँ ऐसा ऐसा ही होगा, क्योंकि और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं। तो उनका है कि आई रे, आर
आर ले एंड एन, इसको तुम खुद अगर लिखना है कभी डिस्क पूरा खोल के लिखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये पूरा लिखना, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दे दिस एंड दिस रिमेन इन वन लेन। ठीक है, ये स्नेल्स का जो स्नेल का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इनफैक्ट स्नेल्स लॉ अगर ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बोलो या दोनों लॉ बोलो, तो तुमको पहले ये लिख दो और दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिख सकते हैं, मगर एक्चुअली स्नेल्स लॉ एक ही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये तो कंडीशन है उसका, मतलब जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक, बट वेन एवर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके समझ के हिसाब से, अगर चीज को समझना है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्नेल्स लॉ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्नेल्स लॉ इज जस्ट वन, दैट इज mu1 sin I इज इक्वल टू mu2 sin R। ठीक है, इस चीज को ढंग से समझो। ये क्या है कि एक मीडियम है, इधर है म्यू1, ऊपर है, नीचे है म्यू2। फिर से बता रहा हूँ, ये है नॉर्मल लाइन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लाइन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमको एंगल के सारे मेजरमेंट पता चलेंगे। एंगल क्यों चाहिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो इट चेंजेस इट्स पाथ, वो मुड़ता है, तो कितना मुड़ता है, कितने एंगल के थ्रू मुड़ता है, इसको हमें मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस तो चाहिए, वही रेफरेंस है नॉर्मल, जिसको हम एन बोलते हैं। ये आ गया आपका इंसिडेंट रे, इधर आया, फिर से लिख रहा हूं आई रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है, आई एंगल कर रहा है। ठीक है, और इंसिडेंट रे अगर डेविएट नहीं होता तो वो अपने स्ट्रेट लाइन में जाता, बट वो डेविएट इसीलिए होगा क्योंकि मीडियम बदल के म्यू1 से म्यू2 हो चुका है। तो यहां अगर मीडियम म्यू2 है तो इंसिडेंट रे हो सकता है अपने डेविएशन जो होगा उसका नॉर्मल की तरफ होगा, है ना, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल के बाहर मुड़ेगा। अगर नॉर्मल के बाहर मुड़ेगा तो इस लाइन में जाएगा, अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा तो इस लाइन में जाएगा। तो जो भी है नॉर्मल से या तो ये एंगल निकालोगे आर, ये होगा। अगर बाहर जा रहा है तो आपको पूरा ये एंगल लेना पड़ेगा एस आर। तो आर अंदर आएगा या बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा या कितना बाहर जाएगा, ये आपको स्नेल्स लॉ से मिल जाता है। ठीक है, तो अब क्या, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पे लेफ्ट हैंड ये इक्वेशन जो है इसको अच्छे से समझ जाओ, बहुत आसान और मजेदार इक्वेशन है। ये क्या है, म्यू1 इंटू साइन आई। ये देखो दोनों टर्म जो है म्यू1 और साइन आई, ये जो आई और म्यू1 दोनों ऊपर है, एक साइड है। म्यू2 और आर, साइन आर मतलब बेसिकली आर है तभी साइन आर है ना, तो म्यू टू और साइन आर या म्यू टू या आर, ये दोनों दूसरे साइड है। म्यू टू और आर ये दोनों दूसरे साइड है। तो बेसिकली एक जो इक्वेशन है वो क्या करता है, अपर साइड के जो बिहेवियर है उसको इक्वेट करता है लोअर साइड के बिहेवियर को, या फिर इंसिडेंट साइड का जो बिहेवियर है उसको रिफ्रैक्शन वाला साइड के बिहेवियर के साथ इक्वेट कर देता है। ठीक है, तो इसी से हमको अब ये तुमको शायद कोई ना कोई ये चीज जरूर पढ़ाएगा स्कूल में बेसिकली कि म्यू1, या फिर ऐसा लिखेंगे आपके इक्वेशन जो है साइन आई बाय साइन आर इज म्यू2 बाय म्यू1। क्या करेंगे बेसिकली, साइन आई के पास साइन आर को नीचे ले जाएंगे और म्यू1 को इधर नीचे ले आएंगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर याद रखना इसमें आसान है क्योंकि इसमें क्या है, दोनों म्यू1 और आई एक साइड है ऊपर इक्वल्स टू म्यू2 और साइन आर नीचे, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो ऊपर इक्वल्स टू नीचे। ठीक है, इतना आसान है स्नेल्स लॉ को याद करना, ऊपर और नीचे। ऊपर इज इक्वल टू नीचे, ऊपर क्या है, म्यू1 है, आई है। अब आई तो सीधा आएगा नहीं, म्यू1 एक नंबर है, याद रखना म्यू1 क्या है, नंबर। आई क्या है, एक एंगल है, मगर सिर्फ एंगल से काम चलेगा नहीं, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एंगल को नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसका फंक्शन ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ले लो, कॉस ले लो। ठीक है, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री आप लिखते हो, साइन ऑफ 90 डिग्री जो आता है 1, वो क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है, उसमें कोई डिग्री नहीं होता, किलोमीटर सेकंड कुछ नहीं होता। साइन ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे डिग्री में लिया तुमने, साइन जैसे ले लिया, वो सिर्फ सीधा एक नंबर देता है। जैसे म्यू वन
light in vacuum by the apparent speed of light in a medium. तो ये भी मीटर पर सेकेंड यूनिट है, इसका भी मीटर पर सेकेंड यूनिट है, तो यूनिट दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। तो दिया क्या है इसने, म्यू बेसिकली क्या है, एक प्योर नंबर है। जैसे मेरे चश्मे का जो लेंस है उसका इंडेक्स है 1.67, तो वो क्या है, मीटर है, साल है, केजी है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ नंबर है। तो क्योंकि हमने म्यू वन यहाँ नंबर लिया तो सीधा ऊपर का मतलब क्या है, जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सिर्फ एंगल तो ले नहीं सकते, तो साइन आई आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए म्यू टू इंटू साइन आर, नीचे का क्या है, म्यू भी है, आर भी है, तो म्यू टू ले लिया, नंबर है, साइन आर, तुम आर तो फिर भी डिग्री में आ गया, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन आर ले लो, काम खत्म हो गया। तो म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर, खत्म कहानी। तो आपको ये वाला जो है फॉर्मूला स्कूल में पढ़ाएंगे, बुक में होगा, इसको याद मत ही रखना। ठीक है, ठीक है, एग्जाम भाई ये तो इसमें भी निकल जाएगा ना। इफ यू रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला and are able to successfully not only remember but also reproduce this formula, तो आप ये फॉर्मूला तो इसी से डिराइव भी कर सकते हैं ना 2 मिनट में। क्या करना है, एक साइड में म्यूज को अलग कर दो, एक साइड पे साइंस को अलग कर दो, बस आ गया ये फॉर्मूला। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू वन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। अब ये जो इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, क्या करेंगे, फिर से वही सिचुएशन लेंगे, इधर है एयर और इधर है वाटर। मैं आपको एक चीज पूछूंगा यहाँ, बेसिकली स्वाति से ही पूछूंगा कि स्वाति ने क्लास अटेंड किया था। एयर का क्या है, म्यू, म्यू वन है, और वाटर का क्या है, म्यू टू है। अब हम मैं पहले ही बताऊं कि यहाँ पे म्यू वन क्या होता है, एयर का 1 होता है, म्यू टू का लेट्स सपोज 1.33 है कुछ। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में वाटर का होता है 1.33। ठीक है, ये उनका वैल्यूज हमको पता है, एक टेबल है, टेबल से पता चल चुका है। लाइट आया इधर किसी भी एंगल पे, साइन आए, ठीक है, इस लाइन पे उसको जाना चाहिए, मगर जाएगा या तो इधर से घुस आएगा या इधर से जाएगा, या तो अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो अंदर आएगा या बाहर जाएगा कैसे पता, अगर वो मान के चलो अंदर भी नहीं आया, मान के चलो दोनों लाइन को हटा देते हैं, अगर मान के चलो दो कहीं नहीं, अपने ही रास्ते पे वापस चला जाता है, तो ये एंगल क्या है, बेसिकली ये जो एंगल है वो आई ही तो है। ये जो आर है अगर लाइट इसी रास्ते पे जाता है तो हमको पता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बेसिक जियोमेट्री है, तो आई इक्वल्स टू आर है। ठीक है, आई इक्वल्स टू आर हो गया। ठीक है, अगर अंदर की तरफ आया लाइट, अगर अंदर की तरफ आया देन आई हैज टू बी ग्रेटर देन आर। अगर बाहर की तरफ गया लाइट तो आई हैज टू बी लेस देन आर। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर आई इक्वल्स टू आर भी हो सकता है, क्या पता, आई इक्वल्स टू आर भी हो सकता है। अब मैं मुझे ये बताओ स्वाति कि इस केस में जहां ऊपर जो है एयर है और नीचे है वाटर, अब मैंने तुमको म्यू वन भी दे दिया, म्यू टू का वैल्यू भी दे दिया, म्यू वन 1 है और म्यू टू जो है 1.33 है। तो अब मुझे बताओ अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन 1, ये है आएगा क्या चीज, सर, अंदर की तरफ आएगा। बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर इक्वल्स टू नीचे, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऊपर इज इक्वल टू नीचे, ये क्या है, स्नेल्स लॉ। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा स्नेल्स लॉ है ना, ये तो लग रहा है कि विभूषित लॉ हो गया या डिफरेंशियस लॉ हो गया। स्नेल तो कभी ऐसा बोला नहीं कि ऊपर इक्वल्स टू नीचे, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ चीजों को समझने का। स्नेल ने तो बहुत ही, जो पेपर लिखा था वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लिखा था। ठीक है, उसको आसान बना के समझा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, ऊपर इक्वल्स टू नीचे, ऊपर क्या क्या चीजें हैं आपके पास, आई है और म्यू वन है। ठीक है, तो म्यू वन इंटू आई कर सकते हैं, मगर आई क्या होता है, डिग्री में होता है, इसको हमको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो साइन बना देना है इसका, साइन आई, म्यू वन साइन आई इज अगेन म्यू वन, जैसे ऊपर है वैसे नीचे म्यू टू होगा, और साइन आई ऊपर था नीचे साइन आर होगा। ठीक है, तो म्यू वन का वैल्यू क्या है, 1, 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग, साइन आई, तो बेसिकली ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स म्यू टू का वैल्यू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई
भाई साइन आर इज 1.33। अब राइट हैंड से हमको क्या पता चल रहा है कि 1.33 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेशियो है साइन आई और साइन आर ये एक से बड़ा है, इसका मतलब साइन आर छोटा हुआ। अगर साइन आर इज लेस देन साइन आई देन आर इज लेस देन आई। सीधी सी बात है, क्योंकि आप हाँ इस ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, इसको हमेशा हमेशा ये रखना है कि आई हो या आर हो, ये हमेशा जीरो से लेस होंगे, जीरो से ज्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे, ये जरूरी होना चाहिए। क्योंकि फिर वरना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगे, जो पीरियोडिक एंगल्स पे साइन का वैल्यू रिपीट होता रहता है, वो सब कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। हमेशा याद रखना किसी भी हालत पे आपको एंगल ऐसा रखना है कि जो चाहे रिफ्रैक्शन का एंगल हो चाहे रिफ्लेक्शन का एंगल हो, ये वो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जैसे यहाँ आपने दिखाया, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है, ठीक है, नॉर्मल के साथ ये जीरो से ज्यादा है, और जीरो मतलब क्या, सीधा इसी लाइन में आएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में सीधा आएगा, मतलब पूरा नॉर्मल के अलोंग ही आएगा। ठीक है, और अगर 90 हो गया, इसका मतलब वो सरफेस के इंटरफेस के अलोंग आएगा। सीधी सी बात है, सरफेस के जो इंटरफेस है उसके लॉन्ग आएगा, तो वो कहीं डेविएट तो होगा नहीं। ठीक है, अपने रास्ते चला जाएगा। तो अगर या फिर आप लोग यहाँ पे इस चीज को ऐसे देख लो, अगर अब ये देखो ये जो आपका इंटरफेस के अलोंग आया, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपका आएगा ना, अब मैंने बताया था कि रे अगर ये है तो इसके अराउंड ऊपर जितना लेंगे नीचे उतना लेंगे, मगर बहुत कम पोर्शन को लेंगे। ठीक है, अब बड़ा ले लेंगे तो फिर वो कर्व बन जाएगा, इतना बड़ा वो कर्व बन जाएगा, इसको इसीलिए छोटा सा पोर्शन लेंगे। वो हो गया उसका वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू दी पाथ ऑफ द रे। अगर ये वेव फ्रंट है तो इसका आधा तो म्यू वन में रहा और आधा म्यू टू में रहा, तब यहाँ पे सिचुएशन बदल गया ना, क्योंकि एक रे एक ही लाइन में जा रहा है मगर उसका वेव फ्रंट जो है आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस केस में डेविएशन कैसे होगा ये डिपेंड करता है म्यू वन और म्यू टू पे, जो हम मिराज के केस में अभी डिस्कस करेंगे। बट ये कौन सा सिचुएशन है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है, और 0 डिग्री के केस में तो बहुत सिंपल है। अगर 0 डिग्री पे आ रहा है कोई रे ऑफ लाइट, मतलब अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, तो सीधी सी बात है मीडियम वन में आ रहा है, वो म्यू वन इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू चाहे म्यू टू कुछ भी हो, म्यू टू नीचे अगर म्यू टू है, म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, अब वही बात है, साइन ऑफ जीरो कितना हुआ, 0 डिग्री हो गया, साइन ऑफ जीरो जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया आपको एक बड़ा सा जीरो। जीरो इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। आपको पता है म्यू टू तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मटेरियल मीडियम है, उसका म्यू टू गिवन है, वाटर है, ग्लास है, वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधी सी बात है साइन आर ही जीरो है। अगर साइन आर इज जीरो देन आर इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब अगर नॉर्मल के अलोंग कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो सीधा नॉर्मल के अलोंग ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के अलोंग अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो नॉर्मल के अलोंग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, म्यू वन साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो, विच इज अगेन म्यू टू साइन आर। अगर म्यू टू साइन आर जीरो है, म्यू टू तो जीरो है ही नहीं, है ना। अगर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई zero, but you know that x into y is zero, that means what, that means y is definitely zero. So in that case, in this case, अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो म्यू वन साइन इंसिडेंस एंगल जीरो हो गया। इसका मतलब म्यू टू इंटू साइन आर इज ऑल्सो जीरो। म्यू टू तो जीरो है नहीं, इसका मतलब साइन आर इज जीरो। अगर साइन आर जीरो है तो आर भी जीरो होगा। तो ये एक अलग सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वो क्यों जीरो होगा, ये हमने स्नेल्स लॉ से पता कर लिया। क्या है स्नेल्स लॉ, ऊपर इक्वल्स टू नीचे, है ना, रफली अगर याद करना है तो। और ऊपर इक्वल्स टू नीचे तो हमने फॉर्मूला बनाया, उसका असली मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दोनों लॉ स्टेटमेंट दो, तो पहला स्टेटमेंट तो आप यही दे देना कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कर सकते हो उसको, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ये चीज, अच्छा मैं तुमको इसका आंसर थोड़ी देर में दूंगा, पहले एक चीज और बता देता हूँ। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा अब तक समझ में आया ना,
बताओ दोनों लोग, या फिर और कोई आ गया हो तो। यस सर, आ गया। ठीक है, आशीष समझ में आया? यस सर। गुड। तो अब एक मजेदार चीज और बताता हूं, इसमें मजेदार चीज क्या है कि ये है मजेदार चीज कि हमने फिर से फॉर्मूला देखो क्या है, ये कैसे कैसे ये स्नेल्स लॉ। अब आप लोगों को आपके बुक में जो है स्नेल्स लॉ, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 10th का बुक है, मैं देख रहा था कहाँ गया, ये है 10th का बुक है, ठीक है। ये आपका, मेरे पास पीडीएफ है, मैं इसमें सर्च मारता हूँ स्नेल, स्नेल मारता हूँ। स्नेल्स लॉ किधर है? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या बता रहा है? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताए क्या इन आपके बुक्स में? 10th में कौन है? आशी, आर यू इन 10th और 9th? 9th। अच्छा ठीक है। तो 10th में जब स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो आपके बुक में मैंने दिखाया कि ये रिफ्रैक्शन की बात जब करता है ना, तभी स्नेल्स लॉ की बात करता है। मगर ये देखो आप एक चीज, एक मैजिक दिखाता हूँ। म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। ये फॉर्मूला हमको पता, आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एस, ठीक है। यहाँ पे हमने वही किया, एंगल मेजरमेंट करना है तो नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको हम बोलेंगे एन। यहाँ से गया एक रिफ्लेक्टेड रे, मान के चलो एक ही पॉइंट है, ठीक है। ये आई, सॉरी, ये है इंसिडेंट रे, आई रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आया तो वहां से टकरा के जाएगा कौन? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टेड रे। तब यहाँ पे भी वही चीज है कि आई रे, आर रे और एन तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। वैसे अगर हम आई रे और एन को लेंगे वो एक प्लेन बन जाएगा, आर रे और एन को अलग से लेंगे वो भी एक प्लेन बन जाएगा। क्यों? किसी भी दो लाइन जो कि स्क्यूड नहीं है वो एक प्लेन में हमेशा रहते हैं। मगर बात यह है, यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि ये तीनों लाइन जो हैं, आई रे, एन और आर रे, ये तीनों एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। पहला ये स्टेज को सेट करना है, ठीक है। जैसे कोई भी मूवी देखने से पहले सबसे पहले मूवी के लिए मूड सेट करवाना पड़ता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा माहौल सेट होता है। तो स्नेल ने क्या, पहले माहौल सेट करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया कि भैया पहले माहौल सेट करते हैं। तो माहौल सेट कर दिया, उसके बाद असली असली बात पे आए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो बराबर होगा किसका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। याद रखना कि जब भी मीडियम, यहाँ पे मीडियम नहीं बदल रहा, अगर इस जो मीडियम है वो कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, नहीं उसको, सॉरी, यहाँ पे मीडियम तो बदल नहीं रहा, तो म्यू 1 म्यू 2 लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम म्यू लिखेंगे। तो जहां रिफ्लेक्शन होता है, हो सकता है वहां प्योर रिफ्लेक्शन हो, मगर जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है जहां पे, ठीक है, वहां रिफ्लेक्शन जरूर होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्योर प्योर रिफ्रैक्शन हो जाए। लाइट आएगा, मीडियम चेंज होगा तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। और ये अगर आई एंगल है तो ये होगा रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन, और ये जो एंगल बनेगा यह रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा ये डिपेंड करता है म्यू 2 बाई म्यू 1 पे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? अब ढंग ढंग से देखो, उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हमने हैगन्स प्रिंसिपल से भी, या फिर हेहन्स प्रिंसिपल से भी हमने प्रूव कर दिया है कि क्यों ऐसा होगा कि रिफ्लेक्शन जो है रिफ्रैक्शन के साथ बराबर होगा। उसके पीछे कारण ये था कि जैसे ये एक आपका, ये यहाँ पे लाइट आके टकराता है, तो अगर ये वेव फ्रंट है, उस रे, अगर हम एक रे लेते हैं तो इसका मतलब एक वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, एक वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जैसे वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आके जब यहाँ पे पहुंचता है ना, वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो वहां पे इससे आगे तो ए बढ़ नहीं सकता। अब क्या होगा, ये एक सेकेंडरी वेवलेट बन चुका है हंस प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वेव को स्टार्ट करेगा स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया, जो वेव इसने फेंका वो एक पर्टिकुलर दूर जाएगा। इसका मतलब ये जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस जो है वो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, और उसी टाइम के अंदर कहीं ना कहीं बी आके यहाँ पे पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। पहले ए, क्योंकि टेढ़ा आ रहा है तो ए यहाँ पे पहुंच गया पहले, बी अभी आया नहीं,
और ये पहुंच के वेव छोड़ दिया। अब बी यहाँ पे पहुंचेगा, बी यहाँ पे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे ए का जो वेव ए ने छोड़ा होगा उसका रेडियस कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा, ठीक है। तो अगर बी से इस जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, जो हमें स्फेरिक सर्कुलर दिख रहा है, उसके तरफ हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन, अब क्या है, इस लाइन के मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, इस लाइन, अब इसको ज्वाइन कर लो, तो इधर रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर, हालांकि मैंने प्रूव नहीं किया था, आई थिंक आई विल प्रूव इट इन द नेक्स्ट क्लास, आप लोग ने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, कि अभी यहां से आया ये एंगल, इस एंगल से आ रहा था वो इंसिडेंट रे, आई रे जिसको बोलते हैं, ठीक है, और यहां से जा रहा है आर रे, ठीक है। तो हमने हेहन्स प्रिंसिपल अप्लाई करके देखा कि ये जो आ रहा है और ये जो जा रहा है, ये दोनों ऐसे होंगे कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हमको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है डिडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं, जो आपके जियोमेट्रिकल डिडक्शन से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम अगले क्लास में प्रूव जरूर करेंगे। मगर ये तो हमने हेयन्स प्रिंसिपल समझ लिया, अब हम स्नेल्स लॉ से कैसे समझेंगे। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, अगर हमें इसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है तो सीधी सी बात है, म्यू1 जो है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एक ही तो मीडियम है, वो म्यू है, तो इसका मतलब म्यू और म्यू दोनों साइड म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 इज म्यू, क्योंकि मीडियम बदला नहीं, सेम मीडियम है। तो साइन आई की जगह साइन आई रखेंगे, साइन आर की जगह साइन आर रखेंगे, तो म्यू म्यू तो दोनों साइड्स कट जाएगा, दैट इंप्लाइज साइन आई इज साइन आर, दैट इंप्लाइज आई इज आर। तो सीधा सीधा स्नेल्स लॉ से ये चीज आ ही रहा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज हम स्नेल्स लॉ से भी समझ सकते हैं। क्यों, स्नेल्स लॉ जरूरी नहीं कि म्यू1 और म्यू2 दोनों अलग अलग हो, और हाँ, रिफ्रैक्शन भी अगर होता और उसमें भी म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 होते, तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ करते तो म्यू1 और म्यू2 तो कुछ होता नहीं, एक ही मीडियम है, तो वो म्यू है, तो उसी मीडियम में वापस जा रहा है वो, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आके टकरा रहा है सरफेस को किसी पॉइंट पे, और टकराने के बाद जब वापस जा रहा है तो उसी मीडियम में वापस जा रहा है, तो म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 व्हिच इज म्यू। तो म्यू1 साइन आर इक्वल्स टू म्यू1 म्यू2 साइन आर जब लिखते हैं, तो म्यू1 और म्यू2 दोनों सेम है, तो लेफ्ट और राइट से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दैट मींस आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहां से भी प्रूफ हो गया चीज, ठीक है, आया समझ में। कोई जुड़ा के अब, हाँ बताओ स्वाति, समझ में आया या फिर से समझाऊं। स्नेल्स लॉ कैसे एप्लीकेबल सर है रिफ्लेक्शन, हाँ सुना नहीं स्वाति, फिर से बोलो। यस सर, समझ आ गया। आ गया, ठीक है। अब हम अगला लिस्ट में क्या है, हमने अप्लाई करके देख लिया स्नेल्स लॉ भी अभी। अच्छा, ये हो गया आपका इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन लाइट, और हेहन्स प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। हेहन्स प्रिंसिपल में क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन अभी यहाँ दिखाया, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये अगर ऐसे आ रहा है कोई, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वेव फ्रंट ले लो तुम, रे और वेव फ्रंट दोनों का खेल है बस, ठीक है। ये जो आ रहा है सीधा लाइन टकरा रहा है वो रे है। रे का क्या मतलब है, बेसिकली रे कुछ नहीं होता, वो वेव फ्रंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो वेव फ्रंट, पहले देखो ये वेव फ्रंट हो गया, अब यही वेव फ्रंट जब इधर आके पहुंचेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे पहुंच गया वेव फ्रंट, इसका मतलब मानकर ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है, ठीक है। ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये, अब यहाँ पहुंचने के बाद ये चुप थोड़ी ना बैठेगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स। तो ये क्या करेगा, हेमिस्फेरिकल वेवलेट्स छोड़ना स्टार्ट कर देगा, मगर बी अभी, इसको अभी आना बाकी है, यहाँ पे पहुंचना बाकी है, ठीक है। अब जितने देर में बी आके इधर पहुंचेगा, बी का जो स्पीड है वो अलग है, ये मीडियम 1 है तो स्पीड भी इसका अलग है, तो बी अलग स्पीड से आ रहा है, और ए जो वेव छोड़ रहा है वो भी अलग स्पीड से ही जा रहे हैं। अगर ए से जो वेव्स जा रहे हैं, यहाँ पे मैं ये बोलूं कि ए का स्पीड अगर कम है, तो ये जो स्फीयर अगर, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, तब तक ये कुछ ज्यादा दूर गया नहीं होगा। तो टेंजेंट फील्ड ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है ऐसा, ठीक है। इसका मतलब अगर सेम रहता तो ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा रहता, मगर क्या है, इधर स्लो है तो कम डिस्टेंस जा रहा है, इसका मतलब अब मुड़ गया इधर, ठीक है, अपने इंटेंडेड रास्ते से नहीं जा पाया,
मुड़ गया, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, दिस लाइन इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ आ गया, वहीं पे उल्टा केस होता कब, अगर मान के चलो इसी चीज को मैं फिर से क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ आपका, ये सरफेस है, ये मान के चलो ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ की फिर से एक वेव आ रहा है, ठीक है, सॉरी रे आ रहा है, तो रे आ रहा है इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन दिखाता है रे किसका, वेव फ्रंट का, यहाँ पे वेव फ्रंट आके पहुंचा, ठीक है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया ए, और यहाँ पे है बी, अभी बी को आप यहाँ ले लो, ठीक है, बी को यहाँ ले लो, ये हो गया मीडियम वन, ये हो गया मीडियम टू, मान के चलो मीडियम टू लाइटर मीडियम है, इसका मतलब ए से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, जो वेवलेट्स निकल रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हैं, मतलब बी जब तक यहाँ पे पहुंचेगा अपने जो ओरिजिनल स्पीड पे जाओ, वो मीडियम वन पे जो उसका स्पीड है, तो ए तब तक बहुत ही आगे जा चुका होगा, मतलब इधर आ चुका होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर आ गया। अब देखो, वैसे नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे जाता, मगर ये इधर मुड़ गया, तो अब क्या होगा, इधर चला गया वो रे, इसका मतलब इंटेंट अब नॉर्मल से ज्यादा एंगल कर रहा है, इसीलिए क्या होता है जब लाइटर मीडियम में वेव घुसता है या लाइट घुसता है, तो वो नॉर्मल से आउटवर्ड चला जाता है, और नॉर्मल से तो आउटवर्ड जाता ही है, जो ओरिजिनल पाथ से आउटवर्ड वो चला जाता है, मगर ये हम इस गैप को नहीं नापते, हम हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल को आर को मेजर करते हैं, वी डोंट मेजर द एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, वी डोंट, ये याद रखना। अब ऐसा होता है, तो बेसिकली हेहन्स प्रिंसिपल ने साफ कर दिया कि क्यों रेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो बेंड होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, और रिफ्लेक्शन में क्यों ऐसा होता है कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, ये हमको समझ में आ गया। मीडियम का भी क्या रोल है, ये भी इफेक्ट है, ये समझ में आ गया। हेन्स प्रिंसिपल इफेक्टिवली हमने रिवाइज कर लिया, वेव ऑसिलेशंस बता दिया क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट। नाउ लेट अस गो टू मिराज। अब मिराज समझाने से पहले, अच्छा अर्नब आ गया, वेरी गुड, क्योंकि हम एक नया चीज समझा रहे थे। अर्नब तुमने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया, बट हाँ तुमने दो तीन अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिस कर दिए, वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। देन यस सर। हाँ, ओके सर। तो मीडियम में देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस कर लिया है, बट ज्यादा मिस नहीं किया तुमने। तो मिराज क्या होता है, मिराज के बारे में तुम्हें अभी मैं एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर से स्क्रीन शेयरिंग जो है ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद साउंड जाए, मैं चाहता हूँ कि साउंड आप लोग सुनो। मैं यूट्यूब पे लाइव मिराज कैसा होता है ये दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम समझेंगे क्यों ऐसा होता है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। मिराज, मिराज एक्चुअल मिराज है कि नहीं है ऐसा कुछ, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये बढ़िया है। ठीक है, इसका और इसको फालतू का म्यूजिक चला रहा है, बस देखो दिख रहा है ना सबको कि क्या है वीडियो में, क्या दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा होगा है ना, वीडियो में क्या दिखा रहा है। यस सर। देखो कि उसको दिख रहा है कि रोड पे पानी है, मगर वो कभी पानी तक पहुंच ही नहीं पाता, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि पानी भी आगे चल जाता जा रहा है, ठीक है। वो उसको बस रिफ्लेक्शन नजर करो कि वो पेड़ जो है वो सीधे उसी रोड के सीधे जाएंगे, तो जो दो पेड़ और एक टावर है उनका रिफ्लेक्शन जो है, ये कौन आ गई महारानी, हटाओ इसको। अच्छा हाँ, फिर से देखते हैं इसको, ये देखो, अब देखो अच्छे से देखो, वो पानी जो लगता है ना रोड पे पानी है, पानी हमको क्यों लगता है कि वो पानी है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अकस्टम्ड है कि जहां पे हमको ऊपर का इमेज नीचे दिख रहा है, इसका मतलब पानी ही होगा, क्योंकि हम लोग जो है हंटर गैदरर फेज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, बाहर घूम घूम के, तो हमारा नेचुरल एक्सपीरियंस ने हमारे ब्रेन को शेप किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जहां पे भी हमें अगर बाहर कहीं रिफ्लेक्शन दिखता है तो हमको क्या लगता है वो पानी ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आईना बनाते थे, आईना मतलब पहले जो जमाने में जब इंसान को ज्यादा टेक्नोलॉजी पता नहीं था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा तो था नहीं, है ना, कि आईना सड़क पे मिल जाते थे,
इधर उधर, है ना। शीशा तो बनाना हमने बाद में सीखा, फिर सिल्वर डिस्कवर किया, फिर सिल्वर को अप्लाई किया शीशे पे, और फिर उसके पीछे कॉपर का कोटिंग दिया ताकि लाइट एस्केप ना कर पाए और रिफ्लेक्शन करके वापस जाए। ठीक है, ये तो आईना बनाने का टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है, मिरर बनाने का बहुत बाद में आया है। ठीक है, बट नेचुरल मिरर क्या होता है, वाटर रिजर्वर जो होते थे, बारिश में पानी जम जाना, स्टिल वाटर, किसी तालाब में पानी बिल्कुल धीरे है तो वहां पे रिफ्लेक्शन दिख जाता था, या किसी पॉट में हमारे घर में हमने पानी रखा है तो उसमें भी हम शक्ल देख लेते तो वो रिफ्लेक्शन होता था। तो पानी जब होता था जमीन पे तो उससे हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। तो इससे, हाँ तो वापस आया, तो इससे हमारा जो है ब्रेन का कस्टम्ड है कि हमको रोड पे, जमीन पे रिफ्लेक्शन दिखता है, इसका मतलब हमको लगता है वहां पानी है। ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हम इवोल्यूशन की वजह से हमारे ब्रेन में काफी अनसाइंटिफिक चीजें, इधर उधर की चीजें ऑलरेडी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको क्या बोलते हैं, आप रोड में जा रहे हो और रोड के बगल में बहुत ही गंदगी जमा हुआ है, आपको क्या लगता है, ई यू करके। ठीक है, क्यों करते हैं, आपको थोड़ा ना जाके उसको खाना है। ठीक है, बदबू तक नहीं आती, आप एसी कार में बैठे हैं, मगर देख के ही आपको एक डिस्गस्ट आता है। क्यों आता है, क्यों, ये इवोल्यूशन की वजह से आता है। क्योंकि भैया उस टाइम पे जब हम इवॉल्व कर रहे थे पुराने टाइम पे, तो इंसान को ऐसा था कि गंदगी वाले चीज चीज को देख के अगर उसके मन में एक डिस्गस्ट नहीं आएगा तो वो उसके पास चला जाएगा और वो अफेक्टेड हो जाएगा, किससे, कोई भी इन्फेक्शन से, डिजीज से। तो अब हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास नॉलेज आ चुका है, वी ऑलरेडी हैव द नॉलेज कि भैया गंदगी है, उसके पास नहीं जाना है। फिर भी हमारे मन में डिस्गस्ट आने का क्या रीजन, क्या है, क्यों आता है डिस्गस्ट, वो सिर्फ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। तो उसी हिसाब से जो आपका मिराज, बेसिकली मिराज देखते ही हमारे दिमाग में, अभी जैसे तुम लोगों ने वीडियो देखा तो आपको क्या लगा, रोड पे कहीं पानी है, पहला इंप्रेशन वो क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारा ब्रेन उसी हिसाब से अकस्टम्ड होता है। और दूसरी बात, ब्रेन हमेशा ऐसा देखता है कि लाइट एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वर्चुअल इमेज आता है। ठीक है, मिराज क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज, जो कि हम इमेज के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मिराज पहले समझते हैं, मिराज क्या है, उसको मिराज बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। तो मिरेज नहीं बोलते, मिराज। जैसे मिराज अभी आया हमारे हमारे पास, मेरे ख्याल से मिराज एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स, वो फ्रांस बनाता है। क्या होता है, ये रोड होता है, एक रोड है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो एक ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक वाला जो है वो आ रहा है इधर से, ट्रक वाला आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चलो, यहाँ पे वो बैठा है ट्रक वाला। ठीक है, आंखें खोल के देख रहा है, उसको अचानक कुछ दूर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जगह है, इस वाले जगह पे क्या दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, इसको बादल दिख रहे हैं। ठीक है, ये आसमान दिख रहे हैं और थोड़े थोड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं, ऐसे इधर नीचे पेड़ दिख रहे हैं, इसको दिख रहा है ऐसा। तो यकीनन सीधी सी बात है, उसके दिमाग में पहला इंप्रेशन आएगा कि ये कहीं ना कहीं पानी है। अगर वो फिजिक्स नहीं समझता है ठीक से, या उसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, तो वो लेगा पानी है, वो क्या करेगा, अगर उसको प्यासा है तुरंत गाड़ी रोक के वहां भागेगा, या फिर गाड़ी को तेज चलाता हुआ आएगा कि जल्दी पानी के पास पहुंचू और पानी पीऊं। मगर अफसोस, बेचारा को पानी नहीं मिल सकता क्योंकि पानी है ही नहीं। अगर नहीं, अगर वो इंसान समझदार है, एक्सपीरियंस है, फिजिक्स जानता है, वो समझ जाएगा कि लाइट जो है कहीं ऊपर से इधर से आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके या बेंड होके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि मिराज जो है वो रिफ्लेक्शन है, नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लाइट ग्रेजुअली बेंड होते होते सीधा उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये बेंड होता है लाइट, और क्यों बेंड होता है ये हम समझ सकते हैं हेहन्स प्रिंसिपल से, अभी देखेंगे क्यों होता है। बट ऐसे बेंड होके वो ड्राइवर के पास जाता है, यहाँ पे इंसान भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि जिस बंदे ने अपने कार से इस चीज को रिकॉर्ड किया है, उसके कैमरा तक ऐसे लाइट बेंड होके जा रहा है। तो उसको इंप्रेशन क्या लगता है कि लाइट, अब इसका जो दिमाग है देखने वाले का, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि लाइट बेंड होके आ रहा है, उसके हिसाब से लाइट जो है वो कहीं यहीं से आ रहा है, बेसिकली इसी लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से। तो उस बेसिकली यहाँ जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो बादल यहाँ पे हैं,
या जो पेड़ है यहाँ से लाइट आया, ठीक है, तो लाइट आके बेंड होके इसके पास गया, तो अब वैसे तो ये सब सीधे 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 इसको दिख रहे हैं सामने डायरेक्टली, मगर इनका जो वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, वो भी उसको लगेगा कि नहीं ये इमेज जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा ये जो इमेज है एग्जैक्टली यहाँ तो नहीं मिलेगा, ये चीज यहाँ यहाँ होगा जस्ट इनके नीचे, ठीक है, ये इस चीज को इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, या फिर मैं ऐसे करता हूँ इस चीज को, आई थिंक आई कैन डू दिस, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं गलती कर दिया, रुको। ठीक है, अब देखो ये जो है ये एग्जैक्ट ट्रेस जो है बेंड होके उसके पास इधर आए, मगर देखने वाले को क्या लगता है कि लाइट इस डायरेक्शन में जाके स्ट्रेट लाइन में उसके आंखों में आ रहा है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये हमारा ब्रेन का एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्शन है, एक हमारा ब्रेन का एक फंक्शन ऐसा बन चुका है कि हमको लाइट हमेशा ऐसा लगता है कि एक ही सीधे डायरेक्शन में आता है, जबकि नहीं, जरूरी नहीं कि लाइट सीधा हमारे आंखों के पास आ रहा हो सकता है लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा हो या रिफ्रैक्ट होके आ रहा हो। जैसे कि ये जो है बेंडिंग है ना, मिराज में जो बेंडिंग होता है ना, ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग, मिराज को कभी भी रिफ्लेक्शन मत बोलना, वो गलत हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। मिराज is not a reflection of light, it's bending of light, bending of light by what? Reflection तो है नहीं, तो क्या है? by continuous refraction, by continuous refraction। अब इस चीज को हम समझेंगे क्यों कैसे। अब देखो मिराज कब होता है ना, जब देखो होता क्या है, यहाँ रोड है, ठीक है, लेवल है, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे ऐसे मार लूंगा तो पता चलेगा ये ग्राउंड है, ठीक है। अब अगर मान के चलो गर्मी का टाइम है, ठीक है, इट्स वेरी हॉट, समर है, ठीक है, समर का टाइम है, इट्स वेरी हॉट, ठीक है, तो आप बताओ समर के टाइम पे जो, अब देखो ज्यादातर रेगिस्तान में रेत होता है ना, रेत पे आपको मिराज दिखता है, या फिर ये जो पक्का रोड होता है जिसको हम आसफाल्ट रोड बोलते हैं, या तो प्योर सैंड में होता है, आपको बीच में भी मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे सैंड ही सैंड होता है, कंप्लीट सैंड होता है, वहां पे हमको ये चीज देखने को मिलता है। और यहां जहां पे एस्फाल्ट होता है, मतलब टार जिसको बोलते हैं, टार काला काला एस्फाल्ट रोड होता है, वहां मिराज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हॉट समर होता है ना, एक्सट्रीमली हॉट है एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले गर्म क्या होता है, जमीन गर्म होता है या उसके ऊपर का एयर गर्म होता है? बताओ आप, कौन बताएगा मुझे? आप कभी बाहर जाते हो गर्मी के, मतलब गर्मी के सीजन में बाहर जाते हो, नंगे पैर खड़ा हो जाओ, नंगे पे नंगे बदन आप खड़े हो सकते हो, अगर चप्पल पहना हुआ है तो नंगे बदन आप बाहर हवा में खड़े हो सकते हो, मतलब ऊपर शर्ट नहीं है आपका, है ना, आप खड़े हो सकते हो, नंगे पैर रोड पे खड़े हो सकते हो। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड या जो पक्का रोड है ना, उस पे तो आप बिल्कुल ही खड़े नहीं हो सकते। अगर मिट्टी का रोड है ना, तब तो खड़े हो सकते हो, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मिट्टी का रोड है, गांव का रोड है, मिट्टी का रोड है, उसमें उसके ऊपर टार नहीं लगा है, तब तो आप आराम से खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर टार का रोड बना हुआ है तो आप उस पर खड़े ही नहीं हो सकते, आपका पैर जल जाएगा। मगर उस रोड के ऊपर जो हवा है, हालांकि हवा आपको गर्म तो लगेगा, मगर कुछ देर तो आप खड़ा हो सकते हो, है ना, वो बेरेबल होता है। वैसे अगर आप कभी बीच समंदर के किनारे जाके देखो, जब भयंकर गर्मी होता है तो रेगिस्तान के जो आपके रेत है, आप उस पे भी नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि ये टार हो या रोड हो, ठीक है, या टार हो या एस्फाल्ट हो, ठीक है, ये दोनों बहुत ही जल्दी गर्म होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी गर्म होते हैं, ठंडे भी बहुत जल्दी होते हैं, मगर ये बहुत जल्दी और बहुत तेज गर्म हो जाते हैं। ये हो गया हॉट। अब जैसे जैसे यहां से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यहां से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, तो ये टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा,
टेम्परेचर डिक्रीज, ये सबसे ज्यादा हॉट रोड है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार डिक्रीज करता रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक कांस्टेंट है, अचानक ड्रॉप हो गया, फिर यहां से एक वैल्यू, फिर अचानक ड्रॉप, नहीं, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। वही चीज सैंड में भी है, मतलब जो मैं अभी एस्फॉल्ट के लिए समझा रहा हूं, जो हमने एग्जांपल देखा, एक पक्का रोड जो टार वाला रोड है उसका हमने वीडियो देखा, उसी चीज को समझा रहा हूं। और यही एग्जैक्ट चीज आपके रेगिस्तान में या सैंड में भी हो सकता है, जहां पे जमीन पूरा दूर दूर तक सैंड सैंड है कंप्लीटली, वहां पे भी यही चीज आपको मिल सकता है। वो रीजन एक ही है, क्योंकि ये लोग ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और इनके ऊपर का जो एयर होता है, ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जरूरी चीज है। यहाँ पे क्या है, एयर क्या होता है, मान के चलो मेरे पास एक सिलेंडर है, एक डब्बा है, सील्ड डब्बा, चेम्बर है, चेम्बर, ठीक है। इस चेम्बर के अंदर जो है गैस है, ठीक है, गैस नहीं तो स्टीम ही मान के चलो। इस सिलेंडर को अगर मैं ठंडा करता रहूंगा ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे ठंडा करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, जो स्टीम अगर है, मान के चलो इनिशियली मैंने स्टीम लिया था इसके अंदर, ठंडा कर दिया, तो ये स्टीम जो ठंडा हो गया, पानी नहीं बन जाएगा थोड़ी देर में। और ठंडा करूंगा उसी चेम्बर को, सील्ड चेम्बर है, तो ये एक बर्फ बन जाएगा, मतलब यहाँ एक बर्फ बन जाएगा, पूरा टोटल बर्फ बन जाएगा ये, है ना। अब ये जिसे से ठंडा करूंगा वो धीरे धीरे, ये था स्टीम, ये हो गया वाटर, ये हो गया आइस, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब आप मेरे को बताओ इनमें से डेंस कौन है। हाँ, हालांकि अगर मैं आइस लूंगा तो आइस एक्चुअली वाटर का एक अलग ही एग्जांपल है। आइस जो है वो वाटर से कम डेंस होता है, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका ज्यादा है, इसका एक्चुअली मास वाला डेंसिटी इसका क्या है, कम है, ठीक है। बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ये सॉलिड हो गया ना, ये मीडियम सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड है, और ये हो गया गैस, ठीक है। अब गैस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो है डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तभी वो गैस है, दो मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा डिस्टेंस है। वाटर में जो है लिक्विड, उसमें वो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू गैस। इसका मतलब है अगर लाइट इस मीडियम से पास करेगा तो हो सकता है उसको कम चीजें फेस करना पड़े, कम एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो फेस करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दो एटम और मॉलिक्यूल के बीच। मगर जैसे ये थोड़ा सा इसका ये टाइटली पैक हो जाएगा, लिक्विड फेज पे आ जाएगा, तो क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए ना अब, ठीक है, तो लाइट को ये क्या करेगा, और ज्यादा स्लो डाउन कर देगा, और ज्यादा इंटरप्ट करेगा। अब सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा इंटरप्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है, किसी भी मीडियम को, कोई भी मीडियम ले लो, है ना, अगर लाइट को इधर घुसना है और यहां से निकलना है, तो इसके अंदर मैटर है, मटेरियल मीडियम में क्या है, मैटर तो है ही। अब मैं ये इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उतना जो है इसके अंदर जो पार्टिकल है उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर तक फैल के रहेंगे। तो लाइट क्या है, उनके बीच का जो है रास्ता पकड़ के आराम से निकल सकता है। तब भी इंटरप्ट होगा, कहीं ना कहीं किसी कोई ना कहीं मिलेगा इसको, लाइट को, जो उसको रोक देगा थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ेगा, फिर रोकेगा, फिर छोड़ेगा, ऐसा करके। बट कंपैरेटिवली जल्दी निकल जाएगा, कब, जब हाई टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर अब यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, इसका मतलब लाइट इसको क्रॉस करेगा, इस पाथ को, इसको ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, क्योंकि वही बात है ना, जब दिन के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे आप देखना लोग अपने काम को निकलते हैं, शाम के टाइम ठंडा होता है, सब अपने अपने घर में आ जाते हैं, वापस मस्ती करते हैं। वही वाला सीन है कि लाइट जब टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, तो क्या होगा, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता रहेगा, और लाइट ज्यादा से ज्यादा इंटरप्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं μ1 बोलूं इस चीज को, और यहाँ पे इस चीज को μ2 बोलूं, तो क्या होगा, μ1 ग्रेटर देन μ1 होगा या μ1 लेस देन μ2 होगा। कौन बताएगा मुझे, तीनों बताओ, जितने लोग देख रहे हो बताओ। इस केस में μ1 अगर मैं म्यू1 हाँ बोलो, सर लेस होगा म्यू1। μ1 विल बी
लेस देन म्यू टू, बिल्कुल सही जवाब, म्यू1 म्यू2 से लेस होगा। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो अब इस केस में क्या है, जैसे वही चीज है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मैंने बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है ये रोड, उसके ऊपर जैसे जाएंगे ना वैसे टेम्परेचर घटता रहेगा। इसका मतलब म्यू क्या है, म्यू भी क्या कर रहा है, म्यू भी इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब म्यू बढ़ रहा है, ठीक है, यही चीज हमने देखा। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट म्यू तो बढ़ रहा है ना, म्यू1 कम था, म्यू2 बड़ा हो गया उससे, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है किसी भी मटेरियल मीडियम में, उसका म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल इंडेक्स जो है, वो इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। यही रीजन है आपका, क्या बोलते हैं इसको, जो मिराज है। कैसे, मान के चलो यहाँ सर एक बार पूरा फिर से आसमान, बोलिए ना, क्या चीज बोलो, एक बार फिर से बोलिए ना। स्टेटमेंट नोट कर रहे हो क्या? नो सर, सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए स्टेटमेंट को। हाँ, जैसे जैसे, आज इसको इंग्लिश में लिख लो, एज फॉर, ऐसा लिखो, मैं इसको टाइप भी कर देता हूं, आप आराम से इसको लिख भी लो, इसको याद रख लेना, या फिर बार बार इसको समझने की कोशिश करना, याद रखना तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूं किसी को। फॉर ऐसे लिख देता हूं, फॉर एनी मटीरियल मीडियम for any material medium as the temperature increases, CREAS increases, its optical, एक तो होता है नॉर्मल डेंसिटी, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरफियर विथ लाइट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी increases and its रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स की जगह यहाँ पे मैं इंग्लिश कीबोर्ड पे लिख नहीं सकता, तो म्यू लिख रहा हूँ, आपको वहां पे म्यू सिंबल वाइज लिखना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट रख लो, जो भी आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज को यहां से उठा के यहां ले आता हूं, ठीक है, लिख लो, ठीक है। लिख लिए अगर आप, फिर मैं वापस आता हूं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया। तो लेट अस कम बैक टू, कहाँ गए, कहाँ समझा रहे थे, इधर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, देखे जैसे कि हमारा म्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया था सुंदर सुंदर, यार सब गायब हो गया, फिर से बनाते हैं, रुको। यहाँ दूर में मान के चलो बादल है, बादल बना दिया, और एक यहाँ मान के चलो एक पेड़ बना दिया, ठीक है, दूर में है कुछ, ठीक है। और यहाँ से लाइट आ रहा है, इसका मतलब ऊपर बिल्कुल आसमान के पूरा सीधे देखोगे, वहां से कभी मिराज का शुरुआत नहीं होता है। इट नेवर स्टार्ट्स विथ very high in the sky. It starts with that part of the sky which is very much from your distance. It starts with that part of the sky. Mirage always starts with that part of the sky which is very far away from you and is very close to the ground. ठीक है, वहीं से मिराज स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, अब यहां से नहीं होगा कि सन इधर है बिल्कुल सर के ऊपर, सन बिल्कुल मिराज बन के नहीं आएगा, वो अगर आएगा वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, दैट विल नॉट बी मिराज। वो डायरेक्ट सन, यहाँ अगर वाकई में पानी है या यहाँ पे वाकई में कुछ रिफ्लेक्टिंग चीज है, तब तो सन का रे यहाँ टकरा के वापस आपके आंख में आ सकता है, दैट इज रिफ्लेक्शन, वो मिराज नहीं है। मगर ये कब मिराज होगा, ये क्लाउड है, और ये मान के चलो एक पेड़ है, इस क्लाउड को भूल जाओ तुम, इस पेड़ को याद रखो, ठीक है। मान के चलिए पूरा का पूरा एक पेड़ ही है, ठीक है, इसको मैंने पेड़ बना दिया है, बहुत बड़ा सा, बड़ा ऊंचा पेड़ है, पत्ते वत्ते हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ से लाइट आ रहा ना, वो क्या होगा ना, यहाँ से लाइट तो आ जाएगा, अब ध्यान रखो, लाइट आएगा, अप्रोच करेगा किसको, रोड के पास पहुंचेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब इसका आप यहाँ देखो ध्यान से,
ये देखो, ये का वेव फ्रंट हो गया, ये तो रे हो गया ना। रे का क्या होता है, वेव फ्रंट। रे बेसिकली है क्या, डायरेक्शन है। असली मैटर कहाँ है, वेव फ्रंट पे है, ठीक है, जो उस रे से आधा ऊपर आधा नीचे एक छोटे डिस्टेंस में हम लेते हैं, वेव फ्रंट है। अब ये वाला पार्ट जो इस वेव फ्रंट को देखो, ये मान के लो ओ, इसको मानो ए, और इस एंड को मानो बी। अब देखो ओ ए जो वाला पार्ट है, वहां पे क्या है, ग्रेजुअली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर, इधर और इधर दोनों की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गर्म कौन सा है, ये हॉट वाला पार्ट है ना, और ये कोल्ड वाला पार्ट। कोल्ड तो नहीं, ये मैं इसको हॉट कोल्ड बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसको वार्म और कूल बोलता हूं, या फिर ऐसे बोलता हूं, ये क्या है, हॉट है, ये लेस हॉट है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये हॉट वाला ये पोर्शन है, क्योंकि ये रोड के नजदीक है, ये रोड से थोड़ा दूर है, तो ये लेस हॉट है। लेस हॉट है इसका मतलब यहाँ पे म्यू जो है, यहाँ पे म्यू टू है, और यहाँ पे क्या है, म्यू वन है। ऐसा तो है नहीं ये कि एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि जैसे जैसे अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये जो है इस ओ से मैं ए के तरफ जैसे जाऊंगा ना, हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा, हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा, और नीचे आऊंगा तो हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पूरा सेक्शन का मैं एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं, ऑन एन एवरेज भी ले सकता हूं, मगर असलियत में क्या हो कि जैसे जैसे मैं ऊपर आता हूं ना वर्टिकली, इस ओ से ए की तरफ जैसे जैसे आता रहूंगा ना, तो हर पॉइंट पे आपका ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा, नीचे घटता रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कि ये जो ऊपर का जो हाफ है, अपर हाफ है, ये लेस हॉट एयर के बीच है, ठीक है। तो इसका म्यू जो है लेस है, इसका अगर मैं इस पार्ट को अगर म्यू टू बोल दूं, और इस पार्ट को मतलब ये आधा नीचे वाला जो पार्ट है उसको म्यू वन बोल दूं, सीधी सी बात है, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है, ऑन एन एवरेज हमको समझने के लिए, ठीक है। तो म्यू टू क्या है, इज ग्रेटर देन म्यू वन। क्यों, क्योंकि म्यू टू कोल्ड वाला पार्ट है और म्यू वन जो है हॉट वाला पार्ट है, और हमको पता है टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करता है म्यू इंक्रीज करता है। अब अगर सीधी सी बात है, यहाँ म्यू टू अगर बड़ा है, इसका मतलब मटेरियल मीडियम जो है वो ज्यादा रोकता है ना। अब वही बात है ना, ये यहाँ से अब आगे जब आएगा ये चीज, तो ये जो वेव फ्रंट है वो अगर इतना दूर आया होगा, ठीक है, नीचे वाला जो वेव फ्रंट है वो इधर आ चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ऐसे बन चुका होगा, ठीक है, ये अगर ऐसे यहां तक आ चुका होगा, नीचे क्योंकि लेस डेंस है, ठीक है, सॉरी नीचे क्योंकि लेस, हाँ लेस डेंस है, उसका म्यू जो है कम है, तो वहां का वेव फ्रंट है बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पे क्योंकि जो है म्यू, यानी म्यू म्यू टू वो कम है, वो कम बढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे अब ग्रेजुअल यहाँ देख ले बेंड हो गया ना, इधर था वेव फ्रंट, अब वेव फ्रंट इधर हो गया, ये वाला पॉइंट अब ए है, ये वाला सेंटर में ओ है। फिर आगे बढ़ेंगे ना, ये यहाँ पे अभी जा रहा है, तो फिर से क्या है, अगेन ये वाला पार्ट जो है फिर क्या है, इसको ये अभी भी म्यू टू में है, और ये अभी भी म्यू वन में है, और म्यू टू क्या है कि ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, उतने में ये वाले सब और आगे बढ़ चुके होंगे, तो ये फिर मुड़ गया, यार फिर बेंडिंग हो गई यार, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कम गया, दूर ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, और ये ज्यादा दूर ट्रैवल कर लेंगे, फिर मुड़ गया। तो आया वेव जो रे है वो ऐसे आया, रोड पे टकराएगा नहीं, क्योंकि टकरा जाएगा ना तो फिर वहां पे वो स्कैटर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये रफ सरफेस है, ठीक है। रोड पे जो रेज हाँ ऐसे रेज आते हैं जो रोड पे टकराते हैं, बस वो स्कैटर हो जाते हैं, उनसे मिराज नहीं बन पाता। मिराज कहाँ से बनता है, जो रेज रोड के बहुत नजदीक से आके निकल जाते हैं, उन्हीं से बनता है मिराज, क्योंकि वही बेंड हो पाते हैं बिना टच किए रोड को। तो ये बेंड होके इधर से रे आया, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वेव फ्रंट जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, हर किसी भी एक वेव फ्रंट को पकड़ लो, उसका जो टॉप हाफ है वो कम डिस्टेंस जाएगा, और बॉटम हाफ है वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। जैसे कि आप क्या करते हो, आप कभी स्विंग करते हो, इसको क्या, स्विंग को क्या, झूले में बैठे हो, झूले में क्या होता है, आप ऐसे जाते हो और ऐसे आते हो, ठीक है। क्या होता है उसमें, ये जो आपका जो रोप है उसका टॉप हाफ बहुत कम डिस्टेंस जाता है, मगर बॉटम हाफ जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, स्विंग जो है बेंड करता है कि नहीं करता है, इस सेंटर को देख लो, ये क्या करता है, बेंड करता है। क्यों, टॉप हाफ जो है वो कम डिस्टेंस कम मूवमेंट कर पाता है, और बॉटम अप ज्यादा मूवमेंट करता है। बिल जैसे गाड़ी जो है
आपका कार है, ठीक है, आप कोई कार चला रहे हैं, ठीक है, रोड पे, और रोड पे आपने टर्न लिया, तो टर्न कैसे पॉसिबल होता है, किसी कार का टर्न कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि ये वाला जो पहिया है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर टर्निंग किया तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपके व्हील्स हैं वो कम घूमते हैं, और ये जो है राइट हैंड साइड के व्हील्स ज्यादा घूमते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके कार में लगाया जाता है डिफरेंशियल्स, आपके कार में इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गियर मैकेनिज्म सेट होता है। जैसे आप टर्न करते हैं ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी जो गियर मैकेनिज्म है, टर्न जैसे हमने टर्न किया, ऑटोमेटिक इसका जो रोटेशन है, रेट ऑफ रोटेशन या उसका रेवोल्यूशन आरपीएम, इसका कम कर देता है और इसका ज्यादा करता है। इसीलिए आपका जो है कार का, मान के चलो भाई, इसको आप वेव फ्रंट मान लो, तो ये वाला हिस्सा जो है इतना दूर गया, तो ये वाला हिस्सा इधर दूर चला जाता है, तो अल्टीमेट जाता है आप, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इधर रे बेंड होके, और कुछ देर जाने के बाद फिर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे और इतना ज्यादा अब रोड के पास ही मेन खेल होता है, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता तो फर्क पड़ता है। मगर अब वहां से इधर से आया, पेड़ से आया, इधर से बेंड हो गया, रोड के नजदीक ही मेन खेल होता है। अब रोड के नजदीक से घूम के इधर आ गया, अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि अब तो एयर में ही है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एयर के, सिर्फ और सिर्फ टोटल एयर के, मतलब रोड से दूर एयर के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता है नहीं, तो म्यू का भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, तो फिर रे अनडेविएटेड फिर चला जाता रहता। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा देख रहा होता है, तो उसके नजर में क्या होता है कि जो लाइट रे है वो इधर से नहीं आ रहा होता है, हाँ डायरेक्टली जो अगर वो देख पा रहा है तो ठीक है, अलग बात है, मगर इसी लाइट रे को अगर वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये इधर से आ रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, ऐसा एक यही पेड़ दिखेगा, इसको उल्टा दिखेगा। तो ये समझ जाएगा कि भैया मेरे को अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो रोड में जहां से मुझे ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, वहां पानी है, क्योंकि ब्रेन उसका वही सोचेगा कि भैया बीच सड़क पे अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो कोई आईना तो रखा नहीं होगा वहां, ठीक है, तो पानी ही होगा मेरे ख्याल से। मगर अगर वो उसके पीछे भागेगा तो इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं, मरीचिका भी बोलते हैं, वो बेवकूफी निकलेगा अपना, पानी उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मिराज है। तो याद रखना कि मिराज इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है मिराज। तो आया समझ में आप लोगों को मिराज का कॉन्सेप्ट, या किसी को कोई डाउट है तो पूछो। है कोई किसी को डाउट, पूछो, या मतलब सबको समझ में आया, डाउट तो खैर पूछ सब ये सोचते हो कोई बताएगा। समझ में आया अर्नब, स्वाति, आशी, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बताते रहो फीडबैक, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग सो रहे हो कि जग रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिराज, ठीक है। अभी इमेजेस, इससे अगले सेशन में हम लोग इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 1 आवर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। अच्छा आप ही बताओ, मैं आपको इमेजेस पढ़ाऊं या ये प्रूव करके दिखा दूं कि 1+2+3 मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज -1/12? आप ही बताओ, नहीं तो मैं आपको इमेज भी पढ़ा सकता हूँ। दोनों चीज आज सेशन में नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। आप लोग बताओ कि आपको इमेजेस के बारे में, क्योंकि इमेजेस अब आ गया, मिराज खत्म हो गया, वी विल गो ऑन टू इमेज, एंड इमेज का जो मैथमेटिक्स है और उसका फिजिक्स बहुत मजेदार है, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, शुड वी कंटिन्यू ऑन टू इमेजेस टुडे, और शुड आई गो अहेड एंड एक्सप्लेन हाउ द सम ऑफ ऑल नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स इज एक्चुअली -1/12? बहुत आसान है समझना। बताओ आप लोग, वोट वोट करके बताओ। अर्नब बताओ, इमेजेस पढ़ना है या मैथमेटिकल वो मैजिक देखना है? सुनाई नहीं दे रहा अर्नब, क्या बोले? तुम बताओ स्वाति, मैथमेटिकल मैजिक देखना है कि इमेजेस के बारे में पढ़ना है? मुझे मैथ्स वाला देखना था, लेकिन वो हर्ष भैया को भी देखना था, तो मतलब नहीं नहीं, वो देख लेगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेगा। आशी, मैथ मैजिक देखना है, इमेजेस के बारे में पढ़ना है? मैजिक। हाँ, तो अभी बताओ, अर्नब तुम्हारी बात नहीं सुन पाया। वैसे तुम्हारे पास, तुम हाँ भी बोल दोगे ना इमेजेस के लिए, अभी ऑलरेडी 2 वोट हो चुका है मैथमेटिक्स के लिए।
कर ले अर्नव, देख ले वो डेरिवेशन, बहुत मजेदार है, क्योंकि इमेजेस को में घुसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे बोलो तो मैं इमेजेस भी पढ़ा सकता हूँ। अर्नव का आवाज नहीं आ रहा है यार, बात उसका कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। हम केयरफुली देखो आप सब, ठीक है, कि अगर वही बात है, मैजिक के क्या है बताता हूँ। इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे थे तो उसने, हर्ष ने पूछा था कि दो पैरेलल रेज जो हैं वो इन्फिनिटी में मीट करेंगे क्या। मैंने बताया था कि हाँ मीट करेंगे। बोला कि कैसे मीट करेंगे सर, पैरेलल रेज तो बिल्कुल ही नहीं मीट करेंगे। मैंने कहा इन्फिनिटी की बात होती है तो सब कुछ अलग ही होता है, बिल्कुल उसका माहौल भौकाल ही होता है इन्फिनिटी का अपना, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ये बोला था कि 1+2+3+4+5+, अगर मैं ऐसे मिलाता जाऊं प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी अगर मैं करूंगा, तो वैल्यू क्या होना चाहिए आपको, सीधी सी बात है, इट शुड बी इंफिनिटी, ठीक है। देखो YouTube पे आपको कुछ अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस के भी वीडियो मिल जाएंगे, जो ये बोलेंगे कि ये जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ वो इनकरेक्ट है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। नहीं, वो इनकरेक्ट नहीं है, ये इंट्यूशन के खिलाफ जाता है, आपके नॉर्मल कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाता है, बट दिस हैज बीन साइंटिफिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू, इट इज साइंटिफिकली फिजिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, -1/12। आप बोलोगे यार नेगेटिव कैसे आएगा, सारे पॉजिटिव है उनका सम करेंगे तो -1/12 कैसे हो जाएगा। ये होता है क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक अजीबोगरीब चीज होती है, ठीक है। अब इस चीज को, इसका मैं बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली फिजिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू कैसे है, कि अगर लाइट जो है, एक लाइट है, मैंने 1 वोल्ट का लाइट लगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे कर करके इनफाइनाइट की तरफ मैं लेता चला जाऊंगा। तो अगर मैं सारे बल्ब्स को एक साथ जलाऊंगा तो इनका ब्राइटनेस भी ऐसे ही कुछ बढ़ेगा। मान के चलो मैंने ऐसे जाके, इसका ब्राइटनेस जो है 1 यूनिट है ना, कैंडेला बोलते हैं लुमिनोसिटी को, 1 यूनिट। इसका दूसरा बल्ब का है 2 यूनिट्स, 2 कैंडेला, 3 कैंडेला, 4 कैंडेला, 5 कैंडेला, 6 कैंडेला, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी में अगर अरेंज करूंगा, अगर मैं सबको एक साथ जलाऊंगा तो मुझे अंधेरा मिलेगा। आई विल नॉट गेट लाइट, लाइट होगा तो पॉजिटिव होता, वो अंधेरा ही मिलेगा। और वो डार्कनेस की जो इंटेंसिटी होगी वो -1/12, या फिर डार्कनेस की इंटेंसिटी क्या होगी, सॉरी 1/12 कैंडेला होगा, CD 1/12 कैंडेला, इसका मतलब दैट इज -1/12, ये फिजिकली वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, अभी आपको लोगों को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। आप अगर हाथ में कॉपी पेन रखना चाहे तो बोलो, आप बोल दो, मैं वेट कर लूंगा। इफ यू वांट टू हैव पेन एंड पेपर रेडी सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि बहुत मजेदार चीज है, आप दोस्तों को दिखा भी सकते हो, आप अपने आप को जीनियस साबित भी कर सकते हो। बहुत छोटा सा खेल है। आर यू गाइस रेडी, स्टार्ट करें, ठीक है। तो हाँ, हाँ, क्या करते हैं, स्टार्ट है ना। ये मान के चलो S, हम मान के चलो हमने ये जो है 1+2+3+4+5 अप टू इंफिनिटी, इसको मैंने S मान लिया, ठीक है, S, ठीक है। एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग, विल फाइंड आउट, ओके। मैंने दूसरा चीज देखा, S1, S1 को मैंने क्या रखा, 1 -1 +1 -1 +1 -1 अब ऐसे, नॉट अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स मैं करता रहा। इसको मैंने S1 मान लिया, ठीक है। S2 मानूंगा 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8, ये ऐसे कर करके इनफाइनाइट टाइम्स में इंफिनिटी तक चला गया, ठीक है। तो तीन चीजें हमको पहले ये अस्यूम करना पड़ेगा कि S अगर है ये समेशन, S2 ये समेशन है और S3 ये समेशन है, तो सबसे पहले हम S1 की वैल्यू निकालते हैं। S1 क्या होगा, S1 इज 1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो 1 - S1 कितना होगा,
1 minus S1 will be 1 minus 1 minus 1 plus 1 ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं ना 1 माइनस S1 के जगह में ब्रैकेट लेके 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus ये अप टू इंफिनिटी टाइम्स। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा 1 1 की जगह -1, फिर -1 की जगह +1, फिर -1 +1 -1 प्लस इंफिनिटी। अब सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है 1 माइनस S1 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये जो है ये क्या है, यही तो है S1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये S1 को इधर ले आऊंगा, -S1 इधर आएगा तो +S1 हो जाएगा, तो 2S1 हमको क्या देगा 1। ठीक है, तो S1 का वैल्यू क्या मिला हमको 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब S1 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। आया समझ में सबको कैसे निकाला मैंने? नहीं समझ में आया यस तो सर। रोको। ठीक है, अब हम S2 के पास जाएंगे। ठीक है, S2 का क्या मतलब है? S2 तो हमने डिफाइन किया था, S2 क्या है 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 प्लस ऐसे कर दिया। ठीक है, अगर मैं S1 माइनस S2 करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 1 -1 होना चाहिए, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस अप टू इंफिनिटी माइनस, अब S2 करना है मेरे को ना, S2 करना है तो माइनस करना है, तो 1 -2 तो मान के चलो ब्रैकेट में रखते हैं पहले 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, तो ये ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया यहाँ पे, तो फिर से करते हैं 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, ये इन्फिनिटी है। अब -1 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ -2 +2, फिर माइनस ऑफ +3 इज -3, मगर ये माइनस ऑफ -4 +4। ठीक है, तो 1 +2 -3 +4 -5 +6 हो गया, ये चलेगा। अब फाइनली निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 -1 इज 0, +2 -1 is 1, -3 + 1 is -2 और 4 -1 is +3। ठीक है, सॉरी, एक मिनट मैंने एक स्टेप यहाँ पे जो है आई मेड ए मिस्टेक, होल्ड ऑन, यहाँ पे थोड़ा सा गिव मी अ मिनट। ओके, S1 माइनस S2 हो गया था, S1 माइनस S2 करना है तो हमको, हाँ S1 माइनस S2 करना है, करेक्ट। तो -2 +3, ओके, हाँ यह क्या करना है, इधर 0 हो गया, ये हो गया 1, फिर हो गया -2 +3, हाँ फिर क्या होगा +3 हो गया, तो -1 +4 यहाँ पे हो गया -2। अच्छा, मैं इस चीज को एक बार क्लियरली करता हूँ ना, यही प्रॉब्लम हो जाता है, इस चीज को अरेंज अगर नहीं करेंगे, वही चीज कहीं कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दी थिंग एंड प्रेजेंट दी एंटायर थिंग जो है प्रॉपरली। ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को पकड़ पाओ। मुझे करना क्या है, पहले तो मैंने S1 का वैल्यू निकाल लिया, सबसे पहला स्टेप क्या था, S1 का वैल्यू निकाल लिया, S1 इज 1/2। ठीक है, वो कैसे किया, 1 - S1 = S1 प्रूव कर लिया, तो उससे मेरे को S1 का वैल्यू निकल गया विच इज हाफ। फिर मैंने क्या क्या करना है, S1 माइनस S2 करना है। S1 माइनस S2 जो है वो कैसे करना है, कि फिर से करता हूँ 1, अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 डॉट डॉट। तो यहाँ गलती मैंने क्या क्या टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6,
बाकी सबको मैंने डॉट्स बना दिए। तो नीचे का भी जो करेंगे हमने 6 नंबर लेने, इसीलिए मैंने 1 to 6 रखा था आपको दिखाने के लिए। तो अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमको S1 से S2 माइनस करना है, ठीक है। तो S2 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अगर खोल दिया ब्रैकेट तो हर एक टर्म जो S2 में है जो ब्रैकेट के अंदर, उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला टर्म है 1 तो बन जाएगा -1, दूसरा टर्म है -2 बन जाएगा +2, तीसरा है +3 तो बनेगा -3, चौथा है -4 तो बनेगा +4, पांचवा है +4 तो बनेगा +5 तो बनेगा -5, छठा है -6 तो बनेगा +6, और फिर माइनस आएगा, सीधी सी बात है। और उस सबको मैंने डॉट डॉट बना दिया यहाँ पे। तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 1 -1 0, -1 +2 इज -1 +2 which is +1, +1 -3 is -2, -1 +4 is +3, +1 -5 is -4, -1 +6 is +5, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब मैंने 6 टर्म लिए थे, ठीक है, मतलब S1 के 6 टर्म और S2 के 6 टर्म दिखाने के लिए, मगर पहला टर्म तो 1 -1 0 हो गया, तो बचे 5 टर्म, बाकी अप टू इन्फिनिटी। अब अप टू इन्फिनिटी दे लें तो हमको कोई ट्रबल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, S1 - S2, यही S1 - S2 कितना होगा, 1 - 2 +3 -4 +5 -6 प्लस, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है, अप टू और इनफाइनाइट टाइम्स। अब मगर ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड में 1 -2 +3 -4 +5 -6 वो क्या है, S2 नहीं है क्या, S2 का वैल्यू क्या है, तो 1 -2 +3 -4 ऑल्टरनेट साइन चेंजिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है, the series of all the natural numbers with alternate change of sign starting from positive, है ना। तो ये वाला साइड क्या है, ये S2 ही तो है, तो इसको मैं S2 लिख सकता हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि S1 - S2 is S2, that implies, अब S2 को इस साइड ले जाऊंगा, -S2 को +S2 कर दूंगा, तो S2 + S2 is 2S2, 2S2 is कितना, S1, और S1 कितना है, 1/2 हमको पता है। तो इससे समझ में आ गया कि S2 क्या है, 1/4, ट्वाइस ऑफ S2 इज हाफ, तो S2 कितना होता है, 1/4, ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे हमको S2 का वैल्यू मिल गया। S2 का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, ये जो है इसका वैल्यू हमको मिल गया, क्या है ये, 1/4। अब आएगा खेल, अब क्या करना है, हमको S1 - S करना है, ठीक है, S1 - S, या फिर 1 - 2, 1 - 2, S1 - S करना है, एक मिनट, अभी S2 - S करना है, सॉरी, हमको S2 - S करना है, S2 से S को माइनस करना है। S2 हमको पता है क्या है, 1 माइनस, फिर से 6 टर्म ले लेते हैं, 1 - 2 +3 -4 +5 -6 प्लस जो भी है उसको डॉट करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स, माइनस एस, एस हमने पहले ही लिया था, ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है हमारा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी, वो एस है। तो माइनस करना है तो उस एस को हम ब्रैकेट में रखेंगे, 1 +2 +3 +4 +5, इसमें सब में प्लस है, +6 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अब इस चीज को करना क्या, हमने इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, इस बार मैंने सबको सेम लाइन में रखा है ताकि हम 1 to 1 ऑपरेशन कर सके, दैट इंप्लाइज S2 - S। मैं अगर ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 1 सॉरी -1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स। अब ब्रैकेट खोल दूंगा तो जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका प्लस है सबका माइनस होगा। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब रिजल्ट क्या आएगा, दैट इंप्लाइज S2
minus s is 1 minus 1 0 minus 2 minus 4 plus 3 ये plus 3 minus 3 0 minus 4 minus 8 plus 5 minus 5 0 minus 6 minus 12 फिर प्लस 7। अब देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 आएगा तो प्लस 7 माइनस 7 0 प्लस फिर आएगा माइनस 8 माइनस 16 सॉरी फिर 9 आएगा प्लस 9 माइनस 9 0। जो भी इसमें देखना जितने भी ऑड नंबर है सब कैंसिल हो रहे हैं। अब तुम्हें एक्चुअली में करके देखना है तो कर सकते हो, बट मैं समझ चुका हूं कि हर ऑड नंबर आएगा तो वो 0 हो जाएगा, मगर इवन नंबर आएगा तो माइनस ऑफ इट्स डबल। तो 9 पे तो 0 हो गया, 10 पे क्या हो जाएगा उसका डबल मतलब 10 माइनस 10 सॉरी माइनस 20। फिर 11 में क्या हो जाएगा 0 प्लस 11 माइनस 11 0। फिर 12 में क्या हो जाएगा माइनस 24। तो ऐसे माइनस में ये चीज आगे बढ़ता जा रहा है। इस चीज को अब 0 तो गया, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 तो 0 है, उसका कोई फर्क ही हमको पड़ नहीं रहा, ठीक है। अब सब कुछ माइनस में है, सीधी सी बात है, अब सब कुछ माइनस में है और देखो सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, तो इसका अगर मैं -4 अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, सब में से, तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और प्लस 6 माइनस 24, ठीक है, इसलिए मैंने 6 टर्म लिए थे 1 2 3 4 5 6 प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब -4 ले लिया, अब ये वाला जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू इंफिनिटी, ये अपने आप में क्या है एस ही तो है। दैट इंप्लाइज s2 माइनस एस इज इक्वल टू क्या है -4 टाइम्स s, है ना, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा s2 इज इक्वल टू -4s प्लस s, ये माइनस एस इधर जाएगा तो प्लस एस हो जाएगा, विच इज -4s प्लस एस कितना होता है -3s हो गया। इस चीज को अगर मैं ऐसे करूं s इक्वल्स टू ये -3 इधर आ जाएगा -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 इंटू s2 हो जाएगा। अब s2 का वैल्यू हमको पता है ऊपर कितना है, s2 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है हमने 1/4। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दैट इम्प्लाइज s इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1/4। इससे हमें क्या साबित होता है s इज -1/12। मिल गया हमको सम ऑफ ऑल natural numbers, sum of all the natural numbers up to infinity is actually, which are natural numbers with the positive integers, sum of all the positive integers up to infinity is -1/12 और -1/12। तो ये ऐसे इसका प्रूफ है। आया समझ में या किसी को कोई डाउट है बोलो तो बता दूं, वरना क्लास इज ओवर फॉर टुडे। टुमारो विल टेक ऑन इमेजेस, डे आफ्टर टुमारो एक्चुअली। हो सकता है टुमारो में बता दूंगा आपको टाइम, अगर हो सकता है टुमारो हम क्लास ले लें, या फिर नहीं तो डेफिनेटली डे आफ्टर टुमारो। किसी को कोई डाउट है अभी जो भी हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा या फिर हम जो अभी हमने डिराइव किया, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो। किसी ने कुछ नहीं पूछा इसका मतलब किसी का कोई डाउट नहीं है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग जो है बंद कर रहा हूँ। 3 लोग हैं, अर्नव, स्वाति एंड आशी। सो अर्नव, व्हाट अबाउट यू, क्वेश्चंस, हाँ या ना? आई थिंक अर्नब का माइक खराब है, शायद कुछ इश्यूज है। स्वाति, कोई डाउट? सर हाँ सर मैंने बुक में पढ़ा था क्या कि लाइट जब है ना मीडियम चेंज करती है ना तो सर उसका ना अपरेंट स्पीड कम होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मेरे को ये समझ नहीं आया। हाँ, तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकता ना। देखो वो क्या होता है ये आपको बताता हूँ। अपैरेंट स्पीड तुमको शायद किसी ने ये बताया होगा कि उसका एक्चुअली में स्पीड जो है कम ही हो जाता होगा, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, बट ओनली अपैरेंट, मैंने आपको पढ़ाया पहले से कि अपैरेंट स्पीड ही बदलता है, उसका एक्चुअली एक्चुअल स्पीड तो सी है, कांस्टेंट फिक्स्ड है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वो फ्रीक्वेंसी होता क्या है ना कि कोई वेव है, ठीक है, ये देखो वही वेव है, ठीक है, सर ठीक स्क्रीन है। नहीं दिख
अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। अब इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो तुम्हें बाद में दूंगा जब हम इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे ना। सॉरी, दी जैसे रिफ्रैक्शन बाय अ मटेरियल मीडियम, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तब मैं इसको मैथमेटिकल तुम्हें प्रूफ दूंगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइट जो होता है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइट होता है ना, उस लाइट की जो आइडेंटिटी होती है, ये समझो, उस लाइट की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वो उसकी आइडेंटिटी है। उसकी एनर्जी का मेन बताया था, लाइट जो होता है उसका एनर्जी जो होता है, ठीक है, एनर्जी, अभी मैं देखो यहाँ पे भी तुम्हें मैथमेटिकली बता देता हूँ। किसी भी लाइट को, लाइट सोर्स को जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी दो चीजों से, एक तो होता है उसका एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर या और नीचे, जो फ्लक्चुएशन के लिमिट होते हैं ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट जितना होगा, लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट ए है तो लोअर लिमिट माइनस ए होगा, ठीक है, तो ए क्या बन गया, एम्पलीट्यूड। तो ये अगेन ये भी अफेक्ट करता है एनर्जी को, और उसका फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं कि एक वेव का एनर्जी कितना होगा। और तुमको मैंने बताया था कि वेव जो होता है, वही आपको फील करना है तो आप अपने हाथ को हॉरिजॉन्टल रखो, मतलब कोहनी से लेके आपके फिंगर जो है, मिडिल फिंगर तक, फोर हैंड जो है, अपने हाथ के सामने रख के उसको, उसका जो है उसको हिलाते रहो विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, धीरे से लेके हाई स्पीड में उसको फ्लक्चुएट करते रहो। अगर करोगे तो समझ में आएगा कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने, आप ये फैक्ट, इसको बेसिकली वेव का यही नेचर होता है कि वेव बेसिकली डिफाइन होता है उसके एम्पलीट्यूड और उसके फ्रीक्वेंसी से। कोई भी साइन्यूसॉइडल वेव, जैसे कि लाइट वेव हो गया, या आपके वाटर वेव हो गए जो आपके तालाब में आपको देखने को मिलता है, ये सब, या ट्यूनिंग फॉर्क का जो वेव हो गया, ठीक है। तो ये सब जो सिन्यूसॉइडल वेव्स होते हैं, ये डिफाइन होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ए और एफ। वेवलेंथ तो डिराइव किया जाता है, बेसिकली वेवलेंथ इन पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट एक क्वांटिटी नहीं है, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैसे, इधर व्हाइट बोर्ड में देखो, वेवलेंथ क्या है। अगर एक वेव का एक वन ऑसिलेशन या वन साइकिल हो गया, ठीक है, एक वन साइकिल, एक पर्टिकुलर साइकिल, मेन पोजीशन से ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, अगर ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये हो गया ए, ये हो जाएगा माइनस ए। तो एक पार्टिकल, टाइम, इधर मैं टाइम को ले रहा हूं, ठीक है, टाइम ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट, वापस अपने मीन पोजीशन पे आया, मगर अभी आधा जर्नी कंप्लीट हुआ है, उसको नीचे भी जाना है, नीचे गया, नीचे टच किया, फिर ऊपर है, ऐसे पैदा हुआ इंसान, अच्छा काम किया, स्वर्ग में गया, मगर स्वर्ग में बुरा काम किया, वापस इंसान बन के धरती पे आ गया, मगर धरती पे आके उसको चैन नहीं मिली और बुरे काम करता रहा, तो गया नर्क में। नर्क में रियलाइज हुआ उसको, भैया अब नहीं, बहुत हो गया, तो अच्छा काम किया, वापस इंसान हो गया, ठीक है। तो ये जो उसका मतलब एक लाइन बन गया, एक फ्लक्चुएशन हो गया, इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है ना, एक साइकिल का लेंथ इन टाइम, देख लो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, ये है वेवलेंथ, इसको बोलते हैं हम लैम्बडा, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ या लैम्बडा, ये होता है वेवलेंथ जो है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज वेवलेंथ डेफिनेशन। अब मैंने बोला, यहाँ पे मैंने तो टाइम दिखाया, आप पूछोगे सर आपने तो यहाँ इस स्केल में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम दिखाया, तो वेवलेंथ मीटर में कैसे या नैनोमीटर में कैसे डिफाइन होता है, क्योंकि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो नैनोमीटर में आता है। कैसे होता है, क्योंकि डेफिनेशन है, वेवलेंथ डिफाइंड है, फ्रीक्वेंसी इनहेरेंट है वेव में, ठीक है। वेवलेंथ को हमें डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए जब भी चेंज होता है तो वेवलेंथ अल्टीमेटली हमको वेवलेंथ में ही चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि वेव एक्चुअली में देखो, ये देखो, मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी लाइट का असली पहचान है। तो लाइट को कोई भी मीडियम रोक नहीं सकता, उसको स्लो डाउन, इसीलिए अपेरेंट स्पीड उसका कम होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया तो बात अलग है, मगर जब तक लाइट लाइट के हिसाब से रहता है, वो सी के स्पीड पे, उसके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बेसिकली ये एब्जॉर्ब कर सकते हो अलग बात है, फिर एमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता लाइट का, कभी फ्रीक्वेंसी वही रहता है, क्योंकि लाइट बेसिकली क्या, उसके फ्रीक्वेंसी उसका एक बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है, ठीक है। दूध,
जो दूध आप पीते हो, दूध बेसिकली दूध में प्रोटीन बाय डिफॉल्ट है। तो अगर किसी भी चीज का अगर मैं व्हाइट कलर का पानी आपको दे दूं, इसमें प्रोटीन ही बदल गया हो, तो वो दूध थोड़ा ना कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूध बनने के दूध का पहचान उसका प्रोटीन है। ठीक है, वैसे वेव का पहचान उसका जो है फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। अब वेवलेंथ क्यों बदलता है ये देखो। लैम्बडा क्या है, हमने डिफाइन कैसे करना है लैम्बडा, वेवलेंथ लैम्बडा इज द डिस्टेंस light travels in one cycle। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो होता है पर सेकेंड, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। डेफिनेशन ऑफ लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ का डेफिनेशन ये होता है, किसने कुछ लिखा शायद, या फिर समवन जॉइंड और समवन लेफ्ट, आई थिंक चैट किसका आया, आशी, आशी यू सेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्क्रीनशॉट रखे क्या, सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा सिर्फ मेरे फोन में ही सेव होगा, गलती से चला गया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा वीडियो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक एज मेनी स्क्रीनशॉट्स। अभी ध्यान देना है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ जाएगा वीडियो के बाद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है स्वाति ने, है ना। अर्नब तुम भी ध्यान से देखो। लैम्बडा क्या है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन साइकिल, ये हो गया वन साइकिल। तो लाइट का स्पीड क्या है बेटा, अगर वैक्यूम में देखूंगा, वैक्यूम लाइट का स्पीड क्या है, c, विच इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो नंबर भूल जाओ फिलहाल, तुम देखो कि c है स्पीड। c क्या है, बेसिकली c इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स जस्ट के लाइट का स्पीड है c मीटर पर सेकेंड। तो एक साइकिल में, ठीक है, मान के चलो हमारे पास एक लाइट है, ठीक है, लाइट है, वो एक साइकिल में लैम्बडा डिस्टेंस जाएगा, तो हमको क्या देखना है कि उसका स्पीड क्या है। डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस हमको कैसे मिलता है, बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है डिस्टेंस का, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम, बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम निकालो या स्पीड इनटू टाइम निकालो। अगर वेक्टर के हिसाब, डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर स्पीड देख रहे हो तो डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम देखना है। तो डिस्टेंस की जगह ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि वेलोसिटी नहीं, अगर वेलोसिटी लिखना है तो मुझे को डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो वन साइकिल के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी भी, मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी f है, इसका मतलब उसको एक सेकेंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, f साइकिल्स। तो f साइकिल्स इन 1 सेकेंड, तो 1 साइकिल के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 1/f सेकेंड्स, करेक्ट। अगर f साइकिल्स के लिए 1 सेकेंड उसको चाहिए होता है, अगर फ्रीक्वेंसी f है, इसका मतलब f साइकिल कंप्लीट करता है वो 1 सेकेंड में, तभी तो उसका फ्रीक्वेंसी f हर्ज होगा। तो इसका मतलब f साइकिल इन 1 सेकेंड, तो 1 साइकिल इन 1/f सेकेंड्स। तो हमको मिल गया टाइम। तो एक साइकिल में उसको जो है 1/f सेकेंड चाहिए होता है। तो अब लैम्बडा कैसे निकालेंगे भाई, तो किसी भी मीडियम, अगर स्पेस है या वैक्यूम है, तो जिस मीडियम में उसका स्पीड है, अगर वैक्यूम में तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड आएगा, ठीक है, उसमें अपरेंट स्पीड आएगा ही नहीं। तो स्पीड क्या हो गया, c। ठीक है, स्पीड इनटू 1/f विच इज c डिवाइडेड बाई f। तो अब देखो 1/f क्या होता है, सेकंड होता है, c क्या होता है, मीटर पर सेकंड, c स्पीड है मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम क्या है, सेकंड। दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, मीटर। तो यहाँ पे मीटर, नैनोमीटर, जो भी लेंथ का यूनिट आ जाएगा। तो लैम्बडा इज इन वैक्यूम, the lambda or the wavelength of a light is c/f, जहां पे f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। वहीं पे अगर मीडियम बदल गया,
अभी इस चीज को मीडियम बदल के देखते हैं। वहां पे अगर मीडियम बदल गया तो उस मीडियम में अगर मान के चलो किसी दूसरा मीडियम, तो वहां सी तो आएगा नहीं ना, वहां वी आएगा। अपेरेंट स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो लैम्बडा अपेरेंट, ठीक है, उसको हम लैम्बडा डैश बोल देते हैं, लैम्बडा या फिर लैम्बडा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैम्बडा इज बेसिकली apparent speed into time। टाइम बेसिकली, टाइम क्यों नहीं बदलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लाइट को स्पेस में या वैक्यूम में जितना टाइम लग रहा था ग्राउंड पे या किसी भी मीडियम में, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, राइट। as long as the light is, no matter whatever medium it goes into, it never changes its frequency or speed. Its actual speed and actual frequency never changes, okay। The only thing that changes is apparent speed। अगर apparent speed किसी मीडियम में v है, तो उस मीडियम में कितना डिस्टेंस लाइट कवर करेगा इन वन कंप्लीट साइकिल, उसको अगर हम लैम्बडा डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसी को अगर हम लैम्बडा डिफाइन करेंगे तो क्या है, स्पीड मतलब apparent speed into 1 by f, which is lambda equals to v by f। तो लैम्बडा इधर क्या हुआ, v घटा, यहाँ पे क्या हुआ, f तो दोनों जगह सेम है, वैक्यूम में भी f वही था, और आपका इधर क्या बोलते हैं, वैक्यूम में भी जो था उसका फ्रीक्वेंसी, इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी वही है। अब लैम्बडा जो है देखो यहाँ पे c के जगह v कर दिया, तो किसी मीडियम में चेंज होता है तो वेवलेंथ उसका घट जाता है, क्योंकि लेस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। आया समझ में स्वाति? यस सर। क्लियर हो गया अर्नव एंड आशी, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसका एक और भी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप यहाँ पे मैं निकालता हूँ, लैम्बडा इन एनी मीडियम। अब हमको पता है मीडियम है, तो अगर कोई भी मीडियम में हम लैम्बडा निकालते हैं, अगर मान के चलो लैम्बडा म्यू लिखूंगा, लैम्बडा म्यू, लैम्बडा और नीचे म्यू सबस्क्रिप्ट, मतलब ऐसे लिखूंगा लैम्बडा म्यू, इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैम्बडा इन स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्बडा इन अ पर्टिकुलर मीडियम दैट हैज द इंडेक्स म्यू। लैम्बडा म्यू को निकालना है। अब देखो म्यू का डेफिनेशन हमको क्या पता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर मीडियम की बात ले रहे हैं, तो उस मीडियम में क्या होता है, म्यू डिफाइन कैसे है, सी वाई, व्हाट इज म्यू, सी वाई वी, है ना, ये तो डेफिनेशन लिया था हमने। तो यहाँ पे v ऊपर ले जाऊंगा और म्यू को नीचे ले आऊंगा, म्यू v इक्वल्स टू सी बाई म्यू, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे v इज c अपॉन म्यू, ठीक है। अब वही चीज को मैं ये फॉर्मूला जो है इसमें लगा दूंगा, v के जगह में क्या करूंगा, c बाई म्यू ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, c बाई एफ 1 बाई म्यू इंटू सी बाई एफ। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लैम्बडा किसी भी मीडियम में किसी भी लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या है, 1 बाई म्यू 1 अपॉन द इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई सी वाई एफ। और सी वाई एफ क्या होता है हमको पता है, सी वाई एफ का मतलब क्या है कि सी वाई एफ इज द वेवलेंथ इन वैक्यूम। सो सी वाई को हम लैम्बडा लिख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन सी वाई एफ पहले, इसको ये चीज जो है क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा इन वैक्यूम। सो बेसिकली इसको मैं लैम्बडा लिख दूंगा, अरे यार, इसको मैं क्या लिखूंगा, लैम्बडा लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा म्यू। तो लैम्बडा म्यू इज लैम्बडा बाई म्यू, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं। तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, और कोई किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आप लोगों को सबको नोटिफाई कर दूंगा। आई एम गेटिंग ऑलरेडी लेट, इट्स 11, आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड नाउ। तो यहीं पे मैं रखता हूँ फिर, है ना। किसी को कोई फीडबैक होगा तो आप लोग मेरे को भेज दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय। समझ में आया कि नहीं, ऐसे क्यों बाय बोल रही हो स्वाति? सर लास्ट वाला सर समझ नहीं आया। लास्ट वाला क्या समझ में नहीं आया? सर यही वेवलेंथ मतलब किसी मीडियम में। अच्छा ठीक है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 11 हो रहा है, तो आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, यस। ठीक है। ओके, चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय।